بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری عزیزوں، میری پیاری خواتین اسلامیہ، آج میں آپ کو ایک لڑکی کا بہت خطرناک اور بہت عبرتناک واقعہ بیان کروں۔ 3 گناہوں کے سبب اس پہ یہ عذاب ہوا۔ وہ لڑکی 3 گناہ کرتی تھی، لیکن اس سے گناہ کیسے کھلے تھے؟ ابھی آپ نے تھمبنیل میں پڑھا کہ نکاح کی رات ہی وہ عورت انتقال کر گئی اور کتیا بن گئی۔ یہ واقعہ میرے اللہ رب العزت نے جب دنیا کو بنایا تو 1,24,000 پیغمبر نبی دنیا میں تشریف لائے، تو ہر نبی کی امت نے جو بھی گناہ کیا وہ گناہ ان کے سر پر آ گیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی امت نے انہیں ستایا تو ان پہ جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں شہروں کو در بدر برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا لوگوں پر، تب ان کی قوم کو بہت ستایا گیا۔ لیکن یہ ہم پہ بڑا فضل ہے اس رب کا جس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ان کی امت میں پیدا کیا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک ایسی امت ہے کہ کتنے گناہ کر لے، کس گناہ میں ملوث ہو جا، بہت زیادہ گناہ کر لیتے بھی پردے میں ہیں، کھلے نہیں ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں۔ لیکن پہلے جو نبی تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لائے، ان کی امت کا یہ حال تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی گناہ کرتے تھے، ان کے گناہ ان کے منہ سے، ان کے جسم سے، ان کے اعضاء سے کھل جاتے تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، یہ وہ گناہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ کرنے والا قبر میں بھی عذاب پاگا، دنیا میں بھی عذاب پاگا اور آخرت میں بھی عذاب پاگا۔ اور ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بہت شکریہ، اور اس اللہ کا شکر جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں پیدا کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات و دن رو رو کے اللہ سے دعائیں کی ہیں کہ اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ لانا، ایسا عذاب مت دینا جس سے ان کی دنیا کھل جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نصیحت کے لیے، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے بچ جائیں۔ تو یہ ایک نبی کا دور تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے نبی جو آئے اس نبی کے دور میں ان کی امت پر ایک لڑکی پر یہ عذاب آیا۔ وہ کس طریقے سے آیا آپ ملاحظہ کریں، اور مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی اس گناہ کو کر رہا ہو تو اس ویڈیو کے سننے کے بعد وہ ضرور اللہ سے توبہ کرے گا اور اس گناہ سے بچ رہے گا، اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو جس نے ہمیں ایسے گناہوں سے کرنے کے باوجود بھی اور ایسا عذاب ہم پر نہیں آیا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ایک نوجوان تھا، پہلے زمانے کی نبیوں کی امت میں ایک نوجوان تھا۔ اس نوجوان نے جب گزر کے جا رہا تو ایک لڑکی کو دیکھا، تو اس سے وہ لڑکی دودھ دعاتی تھی اپنے باپ کی بھینسوں کا، جو گائے بچڑے پلتے تھے اس کے اپنے باپ کے ساتھ دودھ دعاتی تھی۔ جب اسے دیکھا تو وہ اپنا دل ہار بیٹھا، دل دے بیٹھا، دل کی دنیا پلٹ گئی کہ میں اس عورت سے نکاح کروں۔ یہ وسوسے پیدا ہوئے اسے چاہنے کے، اسے لبھانے کے، اسے اپنا دل دے دیا۔ اسے دیکھ کر کے گھر گیا اور پریشان حال میں، پریشانی میں سارا دن گزارا۔ والد اس کے غریب تھے اور بہت سمجھدار تھے۔ جب والد شام کو آئے، رات میں جب حاضر ہوئے تو کہا بیٹے نے، اے میرے والد گرامی، میں آپ سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میں نے آج ایک لڑکی کی بستی میں ایک لڑکی کو دیکھا ہے اور بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے کہ میں نے آج تک اپنی دنیا میں اتنا بڑا ہو گیا ایسی لڑکی نہیں دیکھی، تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ میں اسے اپنا دل دے بیٹھا، مجھے اس سے عشق ہو گیا، میں اتنا پریشان ہوں، تو میں کہنا بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بدنامی ہو، تو میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ فلاں جگہ اس لڑکی سے کر دیں۔ میرے پیارے عزیزو، اگر اس طریقے سے کوئی کہے اپنے باپ سے تو یہ بہت اچھی بات ہے، مبارک ہے۔ تو اس کے باپ نے، سمجھدار باپ تھا، اس کے باپ نے کہا ہاں بیٹا، بڑا خوش ہوا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، کمر ٹھوکی، سینے سے لگایا، کہا میرے بیٹے تو نے بہت اچھا کیا کہ تو نے اس کی عزت نہ اچھالی، بلکہ تو نے مجھ سے اجازت لینی چاہیے اور میں ضرور تیری یہ خواہش پوری کروں گا۔ تو نے مجھے اتنی عزت دی
हालांकि वो कह सकता था उससे जा कर के कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, बातें फैला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने बाप से इजाज़त ली, उसके बाप ने उसकी इजाज़त को मंजूर कर लिया, मान लिया। जब मंजूर हो गई बात, बाप बेटे की वालिदैन खुश हो गए, उसके घर रिश्ता लेके गए, दूधिया के घर। जब दूधिया के घर गए तो उस दूधिया ने उस रिश्ते को कबूल कर लिया कि लड़का नेक है, अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन माल नहीं तो कोई बात नहीं, अच्छा भला है और रिश्ता खुद चल कर आया है। अब उस लड़की की शादी हो जाती है, दुल्हन बन करके वो लड़की उस लड़के के घर आई। जब घर आई, जब मेहमान सो गए, दूल्हा की जब एंट्री हुई इस रूम में, तो उस औरत ने, जो उसकी दुल्हन थी, जो वो लड़की आई थी, उस लड़की ने कहा कि मुझे बहुत तेज की प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा शिद्दत की प्यास लग रही है। वो नौजवान बाहर को आया पानी लेने के लिए, पानी दिया, औरत के दिल में दर्द उठा और फट से वो ख़त्म हो गई। उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह परवास कर गई पानी पीते ही। जब उस लड़के को ये देखा, उसने हाल हलाया, हाथ पकड़ा, पैर पकड़ा, चारों तरफ से उसकी उंगली, उसके चेहरे को देखा, तो बहुत, वो तो मुर्दा हो गई, मर चुकी। तो आन के वो लड़का रोता हुआ बाहर निकला और कहा ऐसे ऐसे बात है। मेहमान इकट्ठे थे, मेहमानों को मालूम हुआ, घर वालों को मालूम हुआ, सब उसकी लड़की के घर वाले भी बुलाए गए कि क्या हुआ, कैसे से बात है। सब ने यकीन कर लिया, मान ली बात, और उसका गुस्ल दफन करने के लिए तैयार हो गए। उसे गुस्ल दिया गया, उसे दफनाने के लिए कफन पहना करके, गुस्ल करा करके ले जाने लगे लोग। जब ले जाने लगे तो जब मसहरी में वो लेटी थी, जिस चारपाई पे उसका जनाजा जा रहा था, तो जनाजे को देखने के लिए सब लोग इकट्ठा थे और चल रहे थे। तो जो लड़की का ससुरा था, उसकी नज़र मसहरी पे पड़ी, जो चारपाई पे वो जा रही थी उस पे नज़र पड़ी। उसे नज़र आया कि इस पे कुत्ता बैठा है कोई, यानी जो कुत्ता की शक्ल में उस मसहरी के अंदर, उस चारपाई पे कुत्ता बना हुई वो लड़की बैठी है। उसने चारपाई को रुकवाया, कहा रोको, ये कुत्ता है, औरत कहाँ गई, वो लड़की कहाँ गई जो हमारी बहू थी। वही जनाजा रखा गया और बैठा दिया गया कि कहाँ गई, सब में ढूंढा ना। तो वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुत्ते को ज़बान दी, उस ज़बान से उस कुत्ते ने कहा मैं ही तेरी बहू का, तू घबरा नहीं, सब लोग घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बहू का अजाब हूँ, जो तुम्हारी बहू ने अजाब किया था। क्योंकि वो दिखाना था अल्लाह को। ऐ मेरी बहनों, अब सुन लो कान खोल के, वो कौन सा अजाब हुआ उस पे, क्यों वो कुत्ता बनी, वो कौन सा अजाब करती थी। उसके वालिदैन वही मौजूद थे और पूछा गया कि बुलाओ इसके वालिदैन को, इसने कौन सा गुनाह किया। तो उस कुत्ते ने बताया, इस औरत ने जिस लड़के के तुम्हारे लड़के से निकाह हुआ है, कितनी खूबसूरत पे इसकी फ़िदा हो गया, लेकिन इसका बातिल बहुत ख़राब था। इससे ये सबक हमें और मिलता है मेरे प्यारे भाइयों कि अगर कोई लड़की आपको खूबसूरत नज़र आ जा, बड़ी अदबदार नज़र आवे, बड़ी हसीन और जमील है, तो उसे अपना दिल मत दो, क्यों दिल इतना हल्के में नहीं मिलता। ये दिल रब्बुल इज़्ज़त के रहने की जगह है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की जगह, तो उसमें किसी को ना बसाओ। हो सकता है जो खूबसूरत है और अंदर से बुरी हो, उसके अखलाक अच्छे ना हो, उसका कोई ऐसा ऐब छुपा हुआ हो, तो किसी को ऐसे दिल ना दो जब तक कि उसकी चारों तरफ से उसकी खोज और उसका पता ना निकाल लो। जब उसे मालूम हुआ, और इससे ये भी मालूम होता है कि नौजवानों को जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले उसके बारे में मालूम करे, उसका नस्ब हस्ब मालूम करे, उसके अखलाक मालूम करे, तब निकाह करे। बिरादर से कोई मतलब नहीं। आज मेरे मुस्लिम भाइयों में ये आग बरस रही है कि उसकी बिरादर है, उसकी बिरादर है। बिरादर मत देखो, पहले देखो कि लड़की दीनदार है, नेक है, बस सलाहियत है। बिरादर तो यहाँ बनी है, लेकिन अमाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर खुलेंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, जब उस लड़की को बुलाया गया, उसकी वालिदैन को, तो उसके वालिदैन शर्मिंदे से, शर्म से सर झुका लिए और खामोश हो गए। क्या जवाब दे, मैं क्या गुनाह करती थी। उसकी माँ को बता, मालूम होते हुए भी उसने जिक्र नहीं किया, कौन से मुझसे बताती। तो उस कुत्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवान दी, तो उस कुत्ते ने कहा कि इसके 3 गुनाह ऐसे थे जिसकी वजह से आज मुझे इसके अमालों के ज़रिए अल्लाह ने कुत्ता बना दिया। पहला इसका गुनाह ये था कि ये दूध दुहाती थी, तो उस दूध में पानी डाला करती थी और लोगों को पैसा बना करके अपने बाप को दिया करती थी। तो इससे मालूम हुआ, ये खुलासा यूँ हुआ कि अगर मेरी बहनें दूध में पानी मिला रही हैं, लोगों को चकमा दे रही हैं, या कोई दूध ये इस काम को कर रहा है, तो अभी तौबा कर ले अल्लाह से कि दूध में पानी बनाने की बिना पर उसका गुनाह ये अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की
नज़रों में कि उसे दुनिया में ये दिखाया। दूसरा गुनाह उसका ये था मेरी प्यारी अजीज़ों, उसका दूसरा गुनाह ये था कि वो लोगों को बहलाया करती थी। इतनी हसीन है, लोगों के रिश्ते तलाक कराया करती थी कि मैं तुमसे निकाह करूँगी, तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, तुम अपनी बीवी से तलाक ले लो, उसके बाद मैं निकाह करूँगी। तो 2 4 8 10 जनों ने, बहुत से लोगों ने इसके कहने पर रिश्ते ख़राब कर लिए, झगड़े कर लिए, और बाद में जब इसके पास आई कि अब हमसे निकाह कर, तो इस लड़की ने मना कर दिया, उनके जज्बातों से खेली। उन्हें ऐसे खेल अपने हुस्न की वजह से उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती, उनके घरों में लड़ाई दंगे कराती थी ये लड़की। इसका दूसरा गुनाह। तीसरा गुनाह ये था कि ये चुगलखोर थी, ये चुगली करती थी। शौहर की बीवी की बातें शौहर से बताती है, शौहर की बातें बीवी से बताती कि दोनों में झगड़ा हो, और लड़के उसको अलग को बुला करके उनसे बदफेली करना चाहती थी, उन्हें अपनी तरफ खींचती थी अपने हुस्न की वजह से कि मैं इतनी हसीन हूँ, और लोग इसके कहने में आ जाते थे। इसने ये 3 गुनाह, बहुत गुनाह अजीम किए। इसकी बिना पर इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके गुनाहों को समेट करके मुझे कुत्ता बना दिया, इस औरत को। मेरे प्यारे अजीज़ों, इसके बाद वो औरत अपनी शक्ल में आ गई, उसे दफन कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ, और इससे कि ये हमें सबक मिलता है कि अगर कोई औरत किसी का घर टूटवाए अपने हुस्न को लुभा करके, तो खबरदार हो जाए। किसी की चुगली करे, मियाँ बीवी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं करता उस शख्स को जो मियाँ बीवी में अलहदगी कराए निकाह के बाद। ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। ये वो गुनाह है जो बख्शने वाला नहीं, इसकी बख्शिश नहीं है। किसी का दिल दूर करना अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा जब तक वो खुद ना करे। तीसरा गुनाह मेरी बहनों, कोई भी चीज़ हो, आज हमारे ज़माने में अल्लाह की तराजू में हर चीज़ तोली जा रही है, और आज हम ज़माने में ये देख रहे हैं कि तोल भी कर रहे हैं। मेरे कोई भाई अगर वीडियो सुन रहा है तो तोल नाप में कभी कमी ना करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो नाप तोल में कमी करेगा वो हम में से नहीं है। हम में का मतलब जानते हो, यानी कि वो मुसलमान नहीं है इस्लाम में। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ये वाक़या सुनने के बाद मेरी बहनें ज़रूर अपने आप को सवालें, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है, ज़्यादा नहीं। 50 साल के बाद अब तो साल ऐसे गुजर रहे हैं जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजर रहे हैं जैसे हफ्ते। कोई बरकत नहीं टाइम में, क्योंकि लोगों के जैसे अमाल हो गए, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी कर दी, वैसे ही उन्हें आराइश और आराम अता कर दिया। क्योंकि पहले ज़माने में कुएँ खुदे हुए थे, बहुत सी चीज़ें थी ऐसी जो आज नहीं हैं। आज एकदम हर काम हो रहा है। तो इसकी बिना और इसकी वजह यही है कि हमारे अमाल ख़राब हैं, हमारे अमाल नेक नहीं हैं, जिससे हमें बरकत हासिल हो। तो अपने अमाल को सुधार लो। और मेरी फिर एक बार कहना है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरतों को सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जो देखा गया वो चुगली की बिना पर, अपनी अय्याशी की बिना पर, अपनी बेपर्दगी की बिना पर। तो ख़बरदार हो जाओ। अगर एक औरत माशरे में बिगड़ जाए तो पूरे माशरे में असर पड़ता है, और एक औरत सुधर जाए तो वो आने वाली नस्लों को सुधार देती है, उससे पूरा माशरा सुधर जाता है। एक मर्द अगर संभले तो वो खुद का फ़ायदा करता है, और एक औरत अगर संभले तो पूरे माशरे की वो एक ऐसा नमूना बन जाता था कि सब उसका जिक्र करते हैं कि देखो फला औरत ऐसी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अपने आप को नेक बनाओ। नेक ना बना सको तो कम से कम किसी की चुगली ना करो, किसी की गिबत ना करो, कोई मिलावट में कम, नाप तोल में कमी ना करो। और तीसरा, अपनी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करो। मेरी प्यारे अजीज़ों, मुझसे पढ़ने में सुनने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मैं तालिब इल्म हूँ, इल्म की चाहत मेरे दिल में, मैं इल्म हासिल कर रही हूँ, और जो भी मेरे पास इल्म होता है मैं आप तक पहुँचाती हूँ। बस मेरी आपसे यही कहना है कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत करे और इस्लाम का बोलबाला करे, इस्लाम पर हम सबको दायम और कायम रखे। और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।